The topic is beta LC oscillation. Actually, I have taught you 6 topics, 6 circuits: AC circuit containing R, AC circuit containing L, AC circuit containing C, then LR, CR, LCR. LC oscillation आपको नहीं पढ़ाया बेटा, LC circuit आपको नहीं पढ़ाया. क्यों नहीं पढ़ाया? The voltage across inductor and the voltage across capacitor are opposite in phase. इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है बेटा वो 180 डिग्री का होता है. तो इनके अक्रॉस जो वोल्टेज होती है बेटा वो एक दूसरे को क्या करती है बेटा, वेनिश करना चाहती है बेटा, न्यूट्रलाइज करना चाहती है. दैट्स वाई दे आर यूज टू प्रोड्यूस एलसी ऑसिलेशन. व्हेन इंडक्टर और कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज देन द सर्किट गिव राइज टू ऑसिलेशंस कॉल्ड बच्चों व्हाट, एलसी ऑसिलेशंस बेटा. These oscillations are produced due to the fact that electrical energy in capacitor changes to magnetic energy in inductor, and again the magnetic energy in inductor changes to electrical energy in capacitor. अगर हम इंडक्टर और कैपेसिटर को बेटा सीरीज या पैरेलल में लगाते हैं तो इनके अक्रॉस जो एनर्जी होती है वो एक दूसरे में क्या होती रहती है बेटा, टाइम के साथ कन्वर्ट होती रहती है, जिसकी वजह से एलसी ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होते हैं. पे अटेंशन ऑन दिस सर्किट. Here I have used a capacitor of capacitance C, inductor of inductance L. They are connected in parallel across a source of EMF E बेटा. ये कोई बैटरी है बेटा, इस बैटरी का EMF E है, ये 2A की है. They are connected in parallel. बच्चों मैंने पहले क्या किया, A को कनेक्ट किया. I first connect capacitor to the battery बेटा. When you will connect the capacitor to the battery, the capacitor will start to charge. By and by the charge in the capacitor will store. When the capacitor is fully charged, जब कैपेसिटर बेटा पूरा चार्ज हो गया, मैंने इसे यहाँ से डिस्कनेक्ट किया and now I connect it to this side बेटा. तो now the capacitor has come in parallel to क्या बेटा, inductor coil. So initially I connect the capacitor to the battery by connecting the key A, as a result of which the capacitor will be fully charged. When the capacitor is fully charged, we disconnect it from this side and we connected this side. ये जो की है बेटा हमने इधर से हटा के इधर ज्वाइन कर दी बेटा. दिस की जो ऐसे थी बेटा, इसकी को यहाँ से हटाया हमने, इधर ज्वाइन कर दिया. नाउ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द इंडक्टर कॉइल. व्हेन द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द इंडक्टर कॉइल, द करंट विल ग्रो इन द इंडक्टर. करंट इंडक्टर के अंदर क्या करेगी बेटा, ग्रो करेगी. यू पीपल हैव बीन टॉट इंडक्टर अपोजेस द फ्लो ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट, due to which an EMF is induced in the coil. That EMF is called beta self-induced EMF. When we switch on the circuit by closing the key B, the capacitor will start to discharge through the inductor coil. Means the current will increase through the inductor coil. As the current will increase through the inductor coil, self-induced EMF will be produced, which will oppose the growth of the current. Dear students, let at an instant of time the charge on the plates of capacitor is Q and the current is flowing in the circuit at a rate di upon dt. When capacitor is fully charged, the capacitor is disconnected from source and with the help of key it is connected across inductor and it starts to discharge. Say at any instant the charge on the plates of capacitor is Q and current in the inductor coil is changing at a rate of di upon dt. The charge on the plates of capacitor is Q and the current is changing at a rate di upon dt. So that induced EMF बेटा, अगर करंट di upon dt के रेट पर चेंज हो रहा है तो induced EMF का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, L di upon dt. बॉयज और गर्ल्स बेटा, कैपेसिटर के अक्रॉस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है बेटा, अभी पढ़ाया मैंने आपको, जानते हैं आप कि V इक्वल टू क्या बेटा, Q अपॉन C. इंडक्टर कॉइल के अक्रॉस क्या है बेटा, L di upon D and they are in parallel. Since they are in parallel, that's why these two voltage must be equal. Means Q upon C must be equal to बच्चों L di upon dt. Next thing is written before you. आपके आगे लिखा हुआ है बेटा, I is equal to dq upon dt. Boys and girls, we know current is defined as rate of flow of charge, but here I have used minus sign. यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया बेटा, माइनस साइन.
माइनस साइन ये शो करता है, सुन लीजिए ध्यान से, द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर विल डिक्रीज, करंट इन द सर्किट विल इंक्रीज। कैपेसिटर की प्लेट्स पर बेटा चार्ज जितना कम होगा सर्किट में करंट उतना ही क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर विल डिक्रीज, current in the circuit will increase. The minus sign shows this thing. Minus sign shows that charge on the plates of capacitor will decrease, the current in the circuit will increase. तो Q अपॉन C इस टर्म को हम इधर लिया है बेटा, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, आई की जगह क्या लगा दिया, माइनस डी क्यू अपॉन डी टी। ये दो स्टेप बेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो। Q अपॉन C इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी बेटा, इसको इधर लिया है तो Q अपॉन सी माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, आई की वैल्यू माइनस डी क्यू अपॉन डी टी लगाती बेटा, तो ये आएगा बेटा, देखो माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर, एल से डिवाइड कर दिया क्यू अपॉन एल सी, डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, एल से डिवाइड कर दिया तो एल इसके नीचे आ जाएगा, क्यू अपॉन एल सी इक्वल टू 0 बेटा। बॉयज और गर्ल्स, इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2। This type of equation you have studied last year in simple harmonic motion. In simple harmonic motion, you people have studied alpha is equal to minus omega square y. Alpha क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन, d स्क्वायर y अपॉन डी टी स्क्वायर। y को दो बार डिफरेंशिएट कर दो, एक्सेलरेशन बन जाएगा। इसे इधर ले आओ, ओमेगा स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। देखो बेटा ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बिल्कुल एक सी है या नहीं है। क्यू की जगह क्या रखा है बेटा, y, और 1 अपॉन एल सी किसकी जगह रखा है बेटा, ओमेगा की जगह। तो ध्यान दीजिए बेटा, कंपेयरिंग इट विद इक्वेशन ऑफ एस एच एम क्या होती है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। अगर बच्चों इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करें तो आपको मिलेगा ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल सी। कंपेयरिंग द टू इक्वेशंस वी शैल हैव ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल सी बेटा। तो ये क्या प्रूव कर रहा है बेटा कि दिस इज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, यानी कि एलसी ऑसिलेशंस को हम क्या कह सकते हैं कि एलसी ऑसिलेशंस आर आइडेंटिकल टू सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, क्योंकि सेम टाइप की इक्वेशन आई है, कांस्टेंट की वैल्यू आई है ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल सी। बॉयज और गर्ल्स बेटा, जैसे ये इक्वेशन आप पढ़ते हो 11th क्लास में, या ध्यान देना, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, क्योंकि इसी इक्वेशन को अगर आप दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये इक्वेशन आती है बेटा आपकी। सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब मुझे नहीं पता बेटा इस इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन ए साइन ओमेगा टी है, ए कॉस ओमेगा टी है, क्योंकि सॉल्यूशन साइन में भी हो सकता है, सॉल्यूशन कॉस में भी हो सकता है। दैट्स व्हाई आई हैव कंसीडर्ड द सॉल्यूशन Q इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी। मैं बेटा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन लेकर चल रहा हूँ और साइन और कॉस दोनों में लेकर चल रहा हूँ। y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी। I इज इक्वल टू माइनस डी क्यू अपॉन डी टी, तो माइनस डी बाई डी टी माइनस डी बाई डी टी, क्यू की वैल्यू लगा दी बेटा, ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी। ए कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो उस माइनस से ये माइनस मिलकर प्लस बन गया ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये माइनस अंदर गया, ये बी आ गया बच्चों, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बनेगा बेटा ए ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। स्टूडेंट्स फिर वापिस यहाँ देखिए एक बार, जब आपने इस की को इधर से इधर डाला था उस टाइम को अगर मैं 0 कहूं कि जब आपने ये सर्किट स्विच ऑन किया तो उस टाइम को अगर हम 0 कहें तो कैपेसिटर की प्लेट्स पे क्या था बेटा, मैक्सिमम चार्ज था। दैट मैक्सिमम चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर वाज Q। करंट इन द सर्किट एट दैट टाइम वाज 0। इनिशियल करंट इन द सर्किट, इस सर्किट में बेटा जो इनिशियल करंट थी वो क्या थी बेटा, 0 थी। कैपेसिटर की प्लेट्स पे जो चार्ज था क्या बेटा, तो मैक्सिमम था। तो वी कैन राइट व्हेन T इज इक्वल टू 0, Q इज इक्वल टू कैपिटल Q, I इज इक्वल टू 0। सो दीज आर द कंडीशंस। So I am substituting these conditions beta in equation this 4 and 5. Therefore, equation 4 and 5 becomes better. देखिए बेटा इक्वेशन 4 को देखिए, Q की जगह क्या आ गया बेटा, कैपिटल Q। टाइम क्या है बेटा 0, तो जब यहाँ टाइम 0 लगाओगे तो cos 0 क्या बन गया बेटा 1,
ए कॉस जीरो प्लस बी साइन जीरो। टी की जगह जीरो लगाओगे तो साइन जीरो, साइन जीरो जीरो, कॉस जीरो वन, तो यहां से आपको क्या मिल गया बेटा, ए इज इक्वल टू कैपिटल क्यू। अब इसमें लगाओ बेटा, जब टी इज इक्वल टू जीरो है तो आई की वैल्यू क्या है बेटा, जीरो। आई की जगह हमने क्या लगाया बेटा, जीरो। टी की जगह जीरो लगाओ तो ए साइन जीरो माइनस बी कॉस जीरो, तो ये क्या है, ध्यान यहां पर बेटा, ए ओमेगा साइन जीरो माइनस बी ओमेगा कॉस जीरो बेटा। ए ओमेगा साइन जीरो माइनस बी ओमेगा, टी की वैल्यू जीरो लगाओगे तो क्या बनेगा बेटा, कॉस जीरो। साइन जीरो जीरो, तो ये तो जीरो हो गया बेटा, कॉस जीरो वन हो गया, तो इसका मतलब क्या आया, बी ओमेगा इज इक्वल टू जीरो। ओमेगा कैन नॉट बी जीरो, तो इट शोज दैट बी इज इक्वल टू, तो ये बेटा दो रिजल्ट आपके पास आ गए। ए की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास, क्यू, और बी की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास, जीरो। So you have obtained the value of A and B. The value of A is Q and the value of B is 0. So therefore equation 4 and 5 students becomes, equation 4 and 5 becomes, देखिए ध्यान से, 4 Q is equal to कैपिटल Q cos ओमेगा t। ए की वैल्यू कैपिटल क्यू है तो ए की जगह कैपिटल क्यू लगा दिया, कॉस ओमेगा टी। बी की वैल्यू जीरो है तो ये टर्म खत्म हो गया बेटा। आई इज इक्वल टू ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू ए ओमेगा साइन ओमेगा टी बेटा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, क्योंकि बी की वैल्यू जीरो तो ये टर्म क्या हो गया, जीरो। तो आप पे क्या बचा बेटा, ए की जगह हम क्या लगा सकते हैं बेटा, क्यू। तो मैं आप यहां लिख दूं क्यू, तो ये बन गया बेटा क्यू ओमेगा साइन ओमेगा टी। फिर दोबारा देख लो, ए की जगह हमने क्या लगाया बेटा, कैपिटल क्यू, तो क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू कॉस ओमेगा टी, बी जीरो, तो खाली ये टर्म बचेगा। आई इज इक्वल टू ए ओमेगा, ए की जगह लग गया कैपिटल क्यू ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये टर्म क्या हो गया बेटा, जीरो। एनर्जी स्टोर्ड इन स्टूडेंट्स कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज कॉल्ड electrical energy, that is UE, E means electrical। याद करो ये फॉर्मूला पढ़ाया था, Q स्क्वायर अपॉन 2C। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज गिवन बाय Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो UE इज इक्वल टू Q स्क्वायर, यानी कि Q स्क्वायर अपॉन 2C इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर ये आ जाएगी बेटा आपकी 6। Q की वैल्यू लगा दो बेटा, UE is equal to capital Q square cos square omega t upon 2C। Energy stored in inductor coil is called, students, magnetic energy, that is UM। इंडक्टर कॉइल की एनर्जी और डेरिवेशन निकाल कर दिखा रखा है। यूएम इक्वल टू क्या होता है बेटा, हाफ एल आई स्क्वायर। एनर्जी स्टोर्ड इंडक्टर कॉइल हाफ एल आई स्क्वायर, तो यूएम इज इक्वल टू हाफ एल। बॉयज आई स्क्वायर का मतलब ये बन गया, तो क्या लिखोगे, क्यू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर हाफ एल, आई स्क्वायर मीन्स क्यू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यूएम इज इक्वल टू हाफ एल क्यू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, देखिए बेटा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन एल सी, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन क्या लिखोगे बेटा, एल सी। हाफ एल क्यू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एल सी साइन स्क्वायर ओमेगा टी। एल एल कैंसिल आउट, तो यू एम इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट बड़े ध्यान से सुन लीजिए, दिस इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दिस इज द मैग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में, मैग्नेटिक एनर्जी टाइम के साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती रहती है। जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में, पोटेंशियल एनर्जी काय में कन्वर्ट होती रहती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी में। टोटल एनर्जी यू इज इक्वल टू क्या बना बेटा, यू ई प्लस यू एम, यू ई प्लस यू एम, यू ई प्लस यू एम, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c दोनों में से कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, क्या बन जाएगा 1। तो सिंपली क्या आ गया बेटा, क्यू स्क्वायर अपॉन
तो जैसे बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन में टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, इन द सेम वे हियर आल्सो द टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट. इट सिंपली चेंजेस फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. दिस इज कॉल्ड बच्चों LC ऑसिलेशन.